हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो लास्ट ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਸਿਡਸ ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸਾਲਟਸ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਬੇਸਿਸ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, chemical properties of acids and bases। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਨਿਊ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਸਿਡਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮੈਟਲਸ। ਜੋ ਐਸਿਡਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੋ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਸਿਡਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਕਾਪਰ, ਸਿਲਵਰ, ਗੋਲਡ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਿਡਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਿਡਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੇਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਿਡ ਲੈ ਲਓ। H2SO4 ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਕੀ ਹੈ? H2SO4 ਕੀ ਹੈ? ਐਸਿਡ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ? ਸੌਲਟ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਸੌਲਟ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਸੌਲਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? ZnSO4 ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ HCl ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਸੌਲਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ, ਜਗਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਪ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ 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 ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮੈਟਲਸ ਬੇਸਿਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬੇਸ ਦੀ। ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? NaOH ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ? ਸੌਲਟ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ NaOH ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस की बन जाएगा अपने को
सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो राजे एक चीज़ देखो दोनों विच की हो रहा है, ਜਦੋਂ भी आप एसिड ਨੂੰ रिएक्ट करवा रहे हैं मैटल के नाल तां सॉल्ट ते हाइड्रोजन गैस, ਜਦੋਂ भी आप बेस ਨੂੰ रिएक्ट करवा रहे हैं किसी भी मैटल के नाल तां अपने को सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बट एक्सैप्शनस आर ऑलवेज देयर। हुण एसिड्स वाली साइड की एक्सैप्शनस है, एसिड वाली साइड की एक्सैप्शनस है, एक्सैप्शनस ये है कि ਜਦੋਂ भी हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन गैस है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫॉर एग्जांपल ਕਾਪਰ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਪਰ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਲਵਰ, ਗੋਲਡ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ हैं। ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਾਪਰ, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ये चारों की है, ये रिएक्शन नहीं करते। जो भी इन्हों किसी एसिड में पावांगे तो अपने को नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होएगी। अंडरस्टैंड? ठीक है, इसके अलावा एक एक्सेप्शन हो रहा है अपने को, केड़ी एक्सेप्शन है, नाइट्रिक एसिड HNO3। जो भी आप किसी भी मैटल के नाल रिएक्ट करावांगे तो अपने को सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, बट नाल अपने को की बन जाऊगा वाटर, हाइड्रोजन गैस की जगह पे अपने को की बनेगा, वाटर बनेगा। रीजन वाटर बनने का रीजन ये है, देखो बेसिकली हाइड्रोजन बनेगा, बट उस तो बाद की होएगा, जिहड़ा नाइट्रिक एसिड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रोंग होने करके एक ही करेगा, मेटल के नाल रिएक्ट कराएगा, हाइड्रोजन एक बार ही बनेगा, बट क्योंकि ये स्ट्रोंग है इस करके की करूँगा, हाइड्रोजन नू वाटर के विच कन्वर्ट करके ऑक्सीडाइज कर दूँगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लास्ट चैप्टर किया ही है, तो ये वाटर बनेगा। ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड नू किसी भी मैटल के नाल रिएक्ट करावांगे, नाइट्रिक एसिड, तो ये अपना मैटल्स की रिएक्शन एसिड्स के बेसिस के नाल। नैक्सट अपने को हैगी है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स केड़े होंदे हैं, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स केड़े होंदे हैं, जिन्हां दे नाल मेटल के नाल CO3 लगा होंदा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिन्हां दे विच मेटल के नाल HCO3 लगा होंदा है। जो भी इन्हां दे आपां रिएक्शन करावांगे एसिड के नाल, एसिड प्लस, ठीक है, तो अपने को की बन जाऊगा, कोई भी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, तो ये की होएगा, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो आप बेस नाल रिएक्शन करावांगे तो अपने को नो रिएक्शन, बेस ये रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, सो तो दो रिएक्शनस घट गई, जो क्योंकि बेस रिएक्ट नहीं करते तो दोनों रिएक्शनस करने की लोड़ नहीं है। ये रिएक्शन हो रही है, हम आप एग्जाम्पल करते हैं, कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो, NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, इन्हों आप किसी भी एसिड के नाल रिएक्ट करवावांगे, कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो एसिड, तो अपने को की बन जाऊगा, सॉल्ट तो बनूगा ही, किहड़ा सॉल्ट बनेगा, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हुण लास्ट टाइम अपने को बनी सी हाइड्रोजन गैस, वो आप पॉप साउंड टेस्ट, हुण इधर बन गया अपने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आप टेस्ट करांगे, ये आप करांगे लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कि नहीं, ये आप करांगे लाइम वाटर टेस्ट। किवें होएगा ये टेस्ट, लाइम वाटर यानी कि स्लेट लाइम आप लास्ट टाइम भी किया सीगा,
पिछले चैप्टर भी बहुत बारी किया है। इनू आप रिएक्ट जो इन आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करावे अपने को CaCO3 बन जाऊगा। एक ही होंगे ट्रांसपेरेंट होंगे, एक ही होंगे ट्रांसपेरेंट, और एक ही में बनता है ये मिल्की बनता है प्लस वाटर बनेगा। बट ये जो भी ये टेस्ट करना है तो कोल करना पेगा, क्योंकि जिवें ही मिल्की होया तो रिएक्शन रोकनी पेगी, अदरवाइज की होएगा ये अगर होर एक्सैस में कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाए तो एक ही बन जाता अपने को CaHCO3। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी की होंगे ट्रांसपेरेंट, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी है कि नहीं बनी है, तो इसलिए आपको जो भी ये टेस्ट करना आपको कोल खड़ के टेस्ट करना पेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। दो प्रॉपर्टीज कर लिया आप, पहली प्रॉपर्टी मैटल्स के नाल, दूसरी प्रॉपर्टी आप की है मेटल कार्बोनेट्स ते मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी आप करनी है। थर्ड प्रॉपर्टी इज वो आपस में किवें रिएक्ट करते हैं जो एसिड्स प्लस बेस, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। एसिड्स प्लस बेस में आप रिएक्ट करावांगे तो अपने को की बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, तो अपने को की बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। और ए वाली जी कंप्लीट रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन में आप की कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जो एसिड्स होंगे हैं देखो वो पॉजिटिव होंगे नेचर में, ठीक है, पॉजिटिव इन द सेंस जो भी उन्होंने आप ब्रेक करते हैं वो आपको पॉजिटिव आयन्स देंगे हैं, और जो बेसिस होंगे हैं वो आपको नैगेटिव आयन्स देंगे हैं। इस करके जो भी आप पॉजिटिव नो और नैगेटिव नो कंबाइन करांगे ज्वाइन करांगे तो अपने को जो भी बनेगा वो की होएगा न्यूट्रल। ठीक है, बट ये अगो दो केसिस हो रहे हैं। ठीक है, किहड़े केसिस है वो आप करते हैं, बट उस तो पहले एग्जाम्पल कर लिए। बेस बोलो कोई भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले सॉरी एसिड लिख दिए, एसिड आप लिख देना HCl लिख लेंगे, बेस आप लिख लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक ही बनाएंगे सॉल्ट, सॉल्ट केड़ा बनूगा NaCl प्लस वाटर। ये जो सॉल्ट होएगा ये न्यूट्रल सॉल्ट होएगा। वाई न्यूट्रल होएगा आप हुणे गल की है, बट ये कंडीशन की है देखो आ भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और आ की है एक वीक स्ट्रॉन्ग बेस, एक ही है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड ते स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो अपने को की बनेगा न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह जो वीक एसिड प्लस वीक बेस ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये भी की बनाएंगे अपने को न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, बट अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड नो और एक वीक बेस नो रिएक्ट कराएंगे तो अपने को की रिएक्शन होएगी। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड नो और वीक बेस नो रिएक्ट कराएंगे तो अपने को की बनेगा एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि वो की है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड का इफेक्ट ज़्यादा होएगा तो अपने को एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड करावांगे तो अपने को केड़ा सॉल्ट बनेगा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, हुण स्ट्रॉन्ग एसिड केड़े हुंदे हैं, वीक एसिड केड़े हुंदे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस केड़े हुंदे हैं, वीक बेस केड़े हुंदे हैं, ये आप आगे डिस्कस करांगे जो आप एसिड्स एंड बेसिस की प्रॉपर डेफिनेशन करांगे। लास्ट क्लास में मैं तुहानूं कहा सीगा कि रजे ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट तुहाडी समझ लई है, प्रॉपर डेफिनेशन आप हुण अज करनी है। ठीक है, सो ये होगी अपने को थर्ड प्रॉपर्टी होगी केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है अपनी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, reaction with मेटल ऑक्साइड। ठीक है,
ਤੇ बेस वाली साइड आप की करांगे बेस वाली साइड आप करना है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड राजे एक गल हमेशा याद रखनी है केड़ी गल याद रखनी है हमेशा कि जो मैटल ऑक्साइड्स है वो हमेशा की होंगे बेसिक इन नेचर मैटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर और नॉन मैटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर तो जो भी आप रिएक्शन करांगे सपोज आप कॉपर ऑक्साइड में रिएक्ट कराने HCl ठीक है HCl की होंदा है एसिड होंदा है तो अपने को की बन जाऊगा अगर आप कॉपर ऑक्साइड के नाल HCl रिएक्ट करवाने तो अपने को की बन जाऊगा CuCl2 प्लस वाटर क्योंकि आ देखो एक ही है बेसिक इन नेचर तो एक ही है एसिड तो अगेन बेस से एसिड की होंगे रिएक्ट करके अपने को सॉल्ट बना देंगे ठीक है तो उस तरह ये आप की करांगे नॉन मैटल ऑक्साइड केड़ा होंदा है कार्बन डाइऑक्साइड आपने को बेस आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अपने को नॉन मेटल ऑक्साइड आ गया अपने को की बन जो CaCO3 प्लस वाटर तो अगेन एक ही हो गया एसिडिक इन नेचर सॉरी एक ही हो गया बेस एक ही हो गया एसिडिक इन नेचर तो अपने को रिएक्शन की बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर ठीक है जिवें आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की है सेम उसी तरह ही है तो अपने को चार तरह दी प्रॉपर्टीज सीगियां जिहड़ियां आपां कर लिया एक चीज़ होर याद रखनी है अगर आप मैटल ऑक्साइड नूं बेस नाल रिएक्ट करवाने तो अपने को नो रिएक्शन इस तरह अगर आप नॉन मैटल ऑक्साइड नूं एसिड नाल रिएक्ट करवाने तो अपने को नो रिएक्शन ठीक है तो आप तीन तरह दी नो रिएक्शनस कर लिया पहली नो रिएक्शन केड़ी की है जो आप नॉन मैटल्स सॉरी हाँ आप रिएक्ट कराने मैटल कार्बोनेट या मैटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में आप बेस नाल रिएक्ट कराने तो अपने को नो रिएक्शन दूसरा आप नॉन मैटल ऑक्साइड में एसिड नाल रिएक्ट करवाने तो अपने को नो रिएक्शन तीसरा मैटल ऑक्साइड में बेस नाल रिएक्ट करवाने तो अपने को नो रिएक्शन ठीक है तो ये सीगा अपने को एसिड्स एंड बेसिस दियां कैमिकल प्रॉपर्टीज इस तो बाद इन्हां तो आपां एसिड और बेस की एक नवी डेफिनेशन का पता चलिया केड़ी आ नवी डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिखनी है ठीक है केड़ी आ नवी डेफिनेशन एसिड्स की होंदे है केमिकल substances that dissociates into H positive ion or hydronium ion in water ठीक है सपोज अपने को HCl है इन आप वाटर के तोड़ांगे तो अपने को की बन जो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव ठीक है ये अपने को की होगी एसिड्स की डेफिनेशन इसी तरह बेस की डेफिनेशन केमिकल सब्सटेंसेस दैट डिसोशिएट्स इनटू OH नेगेटिव आयंस ठीक है फॉर एग्जांपल NaOH है इन्हें ब्रेक करांगे Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ठीक है तो एसिड्स केड़े सबस्टांसिस हो गए जेड़े के टुटन तो बाद H पॉजिटिव देंदे हैं या H3O पॉजिटिव इन्हों की कहते हैं हाइड्रोनियम आयन तो बेसिस केड़े सबस्टांसिस हो गए जेड़े टुटन तो बाद OH नेगेटिव आयन देंदे हैं तो एक ही हो गए बेसिस ठीक है हुण लास्ट क्वेश्चन अज दी क्लास का की है कि एसिड्स ते बेसिस विच फिर कॉमन की है आप प्रॉपर्टीज कर लिया सारिया फिजिकल प्रॉपर्टीज आप कैमिकल अज कर लिया हम आप दसने कि इन्होंने कॉमन की है तो कॉमन की चीज़ है राजे देखो जो भी एसिड ते बेसिस है वो टुटते हैं तो वो की करते हैं आयंस में टुटते हैं कैटाइंस एंड एनाइंस ठीक है जो वो
टुट के पानी विच आयन्स जाते हैं तो जो पानी होंदा है या कोई भी एक्वस सोल्यूशन है उन्होंने की कर देंगे है किसी भी सोल्यूशन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी बना देंगे है। ठीक है, तो एसिड एंड बेसिस द कॉमन पॉइंट की है दे बोथ dissociate into ions and make aqueous solution a good conductor of electricity. Understand? सो अज आप कैमिकल प्रॉपर्टीज़ कीतियां आपां एसिड्स दियां और बेसिस दियां। कैमिकल प्रॉपर्टीज़ विच सब तो पहला आपां एसिड्स नूं मैटल्स नाल रिएक्ट कराया, बेसिस नूं मैटल्स नाल रिएक्ट कराया, पॉप अप साउंड बारे आपां पढ़िया। दैन आपां नैक्सट कीता मैटल कार्बोनेट्स, मैटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिहदे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होंदी है तो उहदे तो आपां लाइम वाटर टेस्ट किया। ठीक है, बेसिस कोई रिएक्ट नहीं करते मैटल कार्बोनेट तो मैटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाल। इस तरह आप फिर एसिड प्लस बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बारे पढ़िया। दैन आपां की कीता कॉपर ऑक्साइड यानी कि मैटल ऑक्साइड की रिएक्शन विद एसिड्स एंड नॉन मैटल ऑक्साइड की रिएक्शन विद बेसिस बारे पढ़िया। ठीक है, एंड लास्ट आप न्यू डेफिनेशनस कीतियां और आप देखा कि एसिड्स और बेसिस विच की कॉमन है। तो अजे इस तरह अगे आप करांगे स्ट्रोंग एसिड्स की होंगे है, वीक एसिड्स की होंगे, अपने घरे किहड़े एसिड्स पाए जाते हैं, जो आप खाने उन्होंने किहड़े एसिड्स होंगे हैं। ठीक है, सो आप नैक्सट फर्दर आने वाली क्लासेस करांगे। सो थैंक यू सो मच।